theorem 6.1, it is very important theorem, that is basic proportionality theorem, और ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੇਲਸ ਥਿਊਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਫ ਅ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਡਰਾਨ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਵਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈਗੀ ਆ A, B and C, a line is drawn parallel to one side, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ one side, ਠੀਕ ਹੈ, to intersect the other two side in a distinct point, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨਾ ਡਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਫॉर ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਦਾ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਡੀ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਈ 'ਤੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਿਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ? ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਏ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਭੁਜਾ ਵਾ, ਆ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਖਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਡੀ ਅਤੇ ਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਸੀ। ਡੀ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਬੀ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ ਬੀ ਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, ਗਿਵਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ। ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਇਨ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਫਸਟ ਸਾਈਡ ਆ, ਵੜੀ ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਏ ਸੀ, ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਇਨ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ, ਮਤਲਬ ਏ ਡੀ ਬਟਾ ਡੀ ਬੀ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਗਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਈ ਅਪੋਨ ਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਡੀ ਅਪੋਨ ਡੀ ਬੀ ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਏ ਡੀ ਅਪੋਨ ਡੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਈ ਅਪੋਨ ਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਬੀ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਏ ਡੀ ਅਪੋਨ ਡੀ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਏ ਈ ਅਪੋਨ ਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਏ ਡੀ ਅਪੋਨ ਡੀ ਬੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਅਪੋਨ ਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ। ਇੱਕੋ ਅਨੁਪਾਤ ਮੀਨਸ ਏ ਡੀ ਅਪੋਨ ਡੀ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਅਪੋਨ ਈ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਰਚਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਈਟ। रचना देखो, दैट इज कंस्ट्रक्शन।
गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। ठीक है, देखो इतना करेंगे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप इतने पहला गया डी एम, दूसरा गया डी एन। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर दैट इज डी एम परपेंडिकुलर टू, देखो डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ए और सी। ठीक है, डी एम परपेंडिकुलर, देखो आ ए सी है, आ रे परपेंडिकुलर है। ठीक है, सेकेंडली ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, हाँ ए बी है। इन पंजाबी डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी खिंचो थे अते यानू अच लिखो अते ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी खिंचो। ठीक है, ਅਸੀਂ ਲੰਬ ਖਿੱਚਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋ, एक डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी तो ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, इस तो बाद आप लिखांगे ज्वाइन, यानी ज्वाइन करेंगे आप ज्वाइन डी सी ਅਤੇ बी। ठीक है, ज्वाइन किन्नू ज्वाइन करेंगे आप डी सी, इन इंग्लिश ज्वाइन डी सी ਅਤੇ डी सी एंड बी। ठीक है, ज्वाइन करता ਆਪਾਂ डी सी ਅਤੇ बी ਨੂੰ, डी सी ਅਤੇ बी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ज्वाइन करता। ठीक है, इन पंजाबी डी सी ਅਤੇ डी सी ਅਤੇ बी ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ठीक है, बी ई ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ डी ਅਤੇ सी ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ डी ਅਤੇ सी ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ठीक है, डी ਅਤੇ सी ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਰਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बी ਅਤੇ ई ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, बी ਅਤੇ ई ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ठीक है, क्लीयर है। आप हम करेंगे प्रूफ शुरू करेंगे। ठीक है, ये होगी साढ़े को कंस्ट्रक्शन तो रचना। ठीक है, ना आगे बन हो गया टू प्रूव, ये आप प्रूव करना। ठीक है, अभी प्रूफ साइट ले लेने, बाकी प्रूव करना आप ए डी बटा डी बी इक्वल टू है ए अपॉन ई सी, ऐसे प्रूव करना। ठीक है, साइट लिख रहा मैं इन्होंने रब कर रहा हूँ। राइट, प्रूफ। ठीक है, सबूत इस तरह करते हैं। कंसीडर, देखो इतने कंसीडर ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल पहला ए डी ई कंसीडर किया आप, दूसरी बी डी ई ट्रायंगल ए डी ई ਅਤੇ ट्रायंगल बी डी ई विच। ठीक है, आप ट्रायंगल कि कंसीडर की एक ए डी हाँ ट्रायंगल देखो, दूजी कड़ी है एक आ ट्रायंगल। ठीक है, असं लिखांगे इत्थे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, देखो ये ट्रायंगल ए डी ई अपॉन
ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BDE, देखो साढ़े को एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना कढ़ते हैं आप, 1/2 आधार गुना मतलब बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इतना सीधी कर लो बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस मतलब आधार तो एच मतलब लंब, ठीक है। बेस इंटू हाइट ये कट गया, 1/2 बेस तो आ हो गया हाइट, आधार गुना लंब। देखो AD का आधार किहड़ा वा, AD का आधार, AD विच आ आधार हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया, हाँ आधार है तो आ हो गया लंब, ठीक है। आधार कितना वा AD तो हाइट कितनी है, ठीक है, आ आधार हो गया, आ लंब EN, कितनी हुई EN। हुण BD देखो BDE आ ट्रायंगल है, ठीक है। देखो ट्रायंगल में ना कई बार इदा ट्रायंगल साढ़े होंगी है, ये इस ट्रायंगल बनी कई बार तो हाइट वो बाहर होंगी है, नोट करो इस गल नूं। ट्रायंगल आ वाली है तो हाइट बाहर है, वही गल देखो इत्थे है, ट्रायंगल कड़ी आ वाली है लेकिन हाइट बाहर है, क्योंकि हमेशा जी लंब होगी परपेंडिकुलर होगी वो हाइट होगी, ये नहीं कि हाइट इत्थे बन जाएगी, हाइट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर। मतलब हुण साडे को आ ट्रायंगल की गल कर रहे हैं, आधार आ वाला हो गया, लंब किहड़ा वा जिहड़ा परपेंडिकुलर है, जिद्दां आ बाहर है, देखो तुहाडे सामने बाहर है ना लंब, ट्रायंगल तो बाहर, इहदी ट्रायंगल साडी आ वाली है तो लंब किहड़ा EN, ठीक है। बेस इज DB, बेस कितना हो गया DB हो गया, तो लंब कितना वा EN, ठीक है, EN जिहड़ा परपेंडिकुलर होगा वही हमेशा लंब होएगा, ठीक है, डैट इज़ हाइट, राइट। इन्हूं कट दईए फिर साढ़े को आ गया AD/DB, ओके। इन्हूं मान लो तुसीं फस्ट इक्वेशन, ठीक है। सेम इदां आप करांगे, हुण देखो हुण पहला AD इन्हूं सैकेंड साइड, ठीक है, रब कर लेना इन्हूं। हुण आपां सेम उदां ही कंसीडर ट्रायंगल ADE एंड पहला मन गया आप BDE, AD तो सेम ही है, ठीक है। असीं मनांगे हुण देखो पहला मन्नी ही BDE, हुण मनांगे CED, किहड़ी मनांगे CED, ट्रायंगल CED। पंजाबी विच की लिखांगे आपां ट्रायंगल ADE अते ट्रायंगल CED विच, ठीक है। एक आ ट्रायंगल हो गई, देखो सेम है, तुसीं अपने भी कर सकते हैं क्वेश्चन नूं। की लिखे आप ट्रायंगल एरिया AR मतलब एरिया, नोट करो AR एरिया ऑफ ट्रायंगल, AD अपॉन AR पाना जरूरी है, AR मतलब एरिया क्षेत्रफल, एरिया ट्रायंगल AD राइट अपॉन एरिया ट्रायंगल CED, ठीक है। CED देखो सेम मेथड, 1/2 बेस गुना हाइट, ठीक है, बेस आधार हो गया, H मतलब लंब हो गया, ठीक है। हुण देखो ये कट गया, हुण देखो इस ट्रायंगल क्या होगा, पहले आप इधरों लिखा बेस आधार, हुण इधरों आधार किहड़ा देखो AE, किहड़ा आधार हो गया AE, आधार हो गया AE, तो लंब किहड़ा हो गया, देखो आधार हो गया तो लंब हो गया DM, लंब कितना हो गया DM, ठीक है। सेम मैथड इस ट्रायंगल देखो हुण आधार AE, लंब कितना हो गया DM। हुण जी ट्रायंगल आप गल की है CED कितने है CE तो D, आ ट्रायंगल देखो आधार किहड़ा हो गया EC, आधार किहड़ा हो गया बेस कितना हो गया EC, E तो C, देखो लंब किहड़ा DM, ट्रायंगल तो बाहर है लेकिन लंब आही है ना जिहड़ा परपेंडिकुलर, ठीक है,
DM दैट इज़ हाइट DM, ठीक है। बेस आ वाला ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਈਟ, ਓਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਲੰਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, दिस इज़ द परपेंडिकुलर, राइट। ट्रायंगल आ वाली है तो हाइट ट्रायंगल बाहर है, इधर देखो ट्रायंगल आ वाली है तो हाइट लंब की है ट्रायंगल तो बाहर है, ठीक है। दैट इज़ DM। ये कट गया, AE पॉइंट कितना गया EC, ठीक है। ये नंबर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप रब कर रहे हो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हम देखो इस पर लिखांगे आप सिंस, लिखो सिंस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। दसो दो ट्रायंगल साढ़े को लिखो, एक आ ट्रायंगल है, नोट करो, एक आ ट्रायंगल है, ठीक है। मीनस एक आ ट्रायंगल हो गई, एक साढ़े को आ ट्रायंगल हो गई, ठीक है। इन्होंने दोनों का बेस किया सेम है, अभी थ्योरम की है बेस कि डी, सेम बेस दैट इज डी, बेस का डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, बिटवीन द सेम पैरेलल पैरेलल्स किहड़े है, दो पैरेलल लाइन विचकार, एक लाइन आ वाली होगी, एक लाइन आ वाली होगी, ठीक है। ये पर बाय कंस्ट्रक्शन किहड़ियां डी ਅਤੇ डी एंड पैरेलल किहड़ियां DE एंड BC, दो पैरेलल विचकार, ठीक है। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, इक्वल इन, देखो एक ही ने अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स है उन्होंने सेम बेस हो तो दो पैरेलल लाइन विचकार हो, ठीक है। तो उन्होंने एरिया की होंगे वा ए ट्रायंगल एरिया तो आल ट्रायंगल एरिया की होगा सेम होंगे वा, ठीक है। आप 9th क्लास थ्योरम की वाली पंजाबी लिखांगे, ट्रायंगल ट्रायंगल की लिखांगे आप BDE ਅਤੇ ट्रायंगल साढ़े को है दूसरी ट्रायंगल किहड़ी है BDE तो दूजी CED दोवें इको आधार, आधार किहड़ा दोवां दा देखो D ਅਤੇ समांतर रेखावां किहड़ियां DC ਅਤੇ B, तो D लगा लो पहले, ठीक है। खुदार DC ਅਤੇ B, DE ਤੇ BC विचकार स्थित हैं, इस करके इन्हों का एरिया क्या होगा सेम होगा, ठीक है। एरिया विल बी सेम, दिस मीन देखो रीजन है साडा लिखता आप इस करके साडा जिहड़ा देखो एरिया कित्थे आऊगा सेम आएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है। BD इक्वल टू CED टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है। टेकिंग रेसिप्रोकल उल्ट क्रम लैन ते, ठीक है। उल्ट क्रम लैन ते, ठीक है। ओके आप इत्थे कर लेने क्वेश्चन नूं रब कर लेने फिगर नूं।
उल्ट क्रम लेंथ मतलब हो गया कि इन्हें उल्टा कर लो, ठीक है। टेकिंग रेसिप्रोकल 1/एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इजिकल 1/, उल्टा कर लो, ठीक है। टेकिंग रेसिप्रोकल एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, ठीक है। उल्ट क्रम लेंथ है, राइट। ओके, उल्ट क्रम लाइन उल्टा कर लिया ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੀ ਡੀ ਨਾਲ ਬੀ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੀ ਡੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੀ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਬਾਏ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਏ ਡੀ दोनों पासे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी नाल गुणा करन ते ठीक है। दोनों पासे आप करना कि हूँ इत्थे भी ए डी ला लेना, आप इत्थे भी ए डी, ठीक है। इस लिखांगे एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों पासे क्या होगा ए डी ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, ठीक है। दोनों पे गुणा करती मैं, ठीक है। इतने भी क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा सी ई डी, राइट। गुणा करती मैं दोनों पासे। इतने भी ए डी लाता मैं, देखो इतने 1 सीगा, इतने ए डी आ गया, इतने भी ए डी आ गया। इदा करो यदी वैल्यू दसो कितनी है, वट इज दिस वैल्यू, दिस इज ए डी अपॉन डी बी, दिस इज ए डी अपॉन डी बी। नोट करो इनू, यदी वैल्यू कितनी है ए डी अपॉन डी बी, तो यदी वैल्यू कितनी है एरिया ऑफ ए डी ओ सी डी, दैट इज ए अपॉन ई सी, ठीक है। रीजन की है यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। पंजाबी लिखांगे आप समीकरण 1 ते 2 नूं वरतन ते। आप देखो इक्वेशन 1 नूं इत्थे यूज़ किया वा, मीनस जी ये वैल्यू है साढ़े को, देखो जी ये वैल्यू है, देखो नोट करो कितनी है वैल्यू, डैट इज ए डी अपॉन डी बी। तो ये वैल्यू हैगी है डैट इज ए अपॉन ई सी। देखो साढ़े को हो गया प्रूव कि साढ़े को कोई ट्रायंगल सी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सिद्ध हो गया साढ़े को। देखो आप कितना की है, अभी प्रूव करना कि इट इज़ ना सेम रेशो, डैट इज दोबारा बनाना फिगर ए बी सी आ डी तो ई है, आ लाइन पैरलर सी, ठीक है। इस करना कि जी आप लाइन है जो पैरलर है, बाकी दो भी आपको सेम रेशो जो बनती है, मीनस ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी, हो गया प्रूव। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ठीक है, सिद्ध हो गया साढ़े को। बस हैंस प्रूव लिख दो बस, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ओके।